بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 86 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا اپنی اقوام سے مکالمہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام سے مکالمات تھے ان کی تفصیل پڑھی تھی۔ آج انبیاء کرام علیہم السلام کے جو اپنی اقوام سے مکالمے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی اپنی اقوام سے جو مکالمے فرمائے ہیں ان کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اور ملتا ہے۔ مکالمے کے ضمن میں سب سے اہم مرحلہ وہ نظر آتا ہے جب قرآن انبیاء کرام علیہم السلام کے اپنی اقوام سے مکالمے کی منظر کشی کرتا ہے، یعنی ان مواقع کا ذکر کرتا ہے جن مواقع پر انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی اقوام کو مخاطب کیا، اور ان کی مخاطبت کا جو پہلو تھا، ان کے مد نظر جو پہلو تھا وہ اصلاح کا پہلو تھا، وہ اصلاح جس کا تعلق ان کی پوری زندگی سے تھا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے جو اپنی اقوام سے مکالمے ہیں ان کی جو کیفیات ہیں ان کی تفسیر قرآن نے ذکر کی ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ دعوت اسلام سے ہے، تاکہ ہر دور کے داعی ان کیفیات کو مد نظر رکھیں جن کیفیات کو جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اقوام سے مکالمے کیے ہیں، تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ تا قیامت جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ تو لہٰذا ہر دور کے داعی کو ان کیفیات کو مد نظر رکھنا چاہیے جو کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی اقوام سے مکالمہ کرتے ہوئے مد نظر رکھی، لہٰذا داعی کے لیے یہ ضروری ہے۔ ہم بطور مثال ان چند آیات مکالمات کا ذکر کریں گے جو کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے جو ہے وہ اقوام سے جو ہے وہ مکالمے کیے ہیں۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا جو اپنی قوم سے مکالمہ ہے اس کا ذکر کریں گے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده۔ یہ جو آیت کا ٹکڑا میں نے یہاں ذکر کیا ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے جو ہے وہ مکالمہ ہے کہ فرمایا اے میری قوم بھلا یہ بتاؤ اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے اور اس نے عطا فرمائی ہو مجھے خاص رحمت، وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ اپنی جناب سے اس نے مجھے رحمت عطا فرمائی ہو، پھر پوشیدہ کر دی گئی ہو، فعمیت پھر پوشیدہ کر دی گئی ہو تم پر، تو کیا ہم جبرن مسلط کریں تم پر یہ دعوت؟ انلزمکموها وانتم لها کارہون، تمہیں یہ ناپسند ہو یہ دعوت، تمہیں اس حال میں کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو ہم جبرن مسلط کریں؟ تو یہ ان کی جو قوم سے مکالمہ ہے، جو ان کی قوم کو انہوں نے مخاطب کیا ہے اس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنی قوم کو جو ہے وہ مخاطب کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جو ہے وہ دعوتی سرگرمیاں کی ہیں، اور اس دوران آزمائش اور ابتلاء کا سامنا بھی انہیں ہوا، لیکن وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے جو ہے وہ اس آزمائش اور ابتلاء کے جو مرحلہ ہے اس کو جو ہے وہ بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ گزارا، اور ان کی جو دعوت تھی، دعوت کے جو اسالیب تھے، مختلف اسالیب کو انہوں نے جو ہے وہ اپنایا، حکمت اور موضوعات کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے مجادلہ اور مباحثہ کیا ہے اور اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے جو ہے وہ تبلیغ میں گزاری ہے، دعوتی کاوشوں میں گزاری ہے۔ ان کی جو دعوتی کاوشیں ہیں وہ داعیان اسلام کے لیے درخشندہ مثال ہیں، یعنی کہ اس کے اندر ایک جو ہے وہ عمدہ مثالیں ہیں جو ان کی دعوتی کاوشیں ہیں داعیان اسلام کے لیے، ان کے مکالمے کو مد نظر رکھنا
ज़रूरी है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने जितने भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने अपनी अक़वाम से मुकालमे किए हैं, उनमें जो है वो दाइयान इस्लाम के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। ख़ास तौर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो दावती ज़िंदगी है वो काफ़ी तवील है, उसमें तो बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी दावती काविशों में उनके लिए जो है वो बेहतरीन मिसाल है। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो मुकालमात हैं वो भी कुरान करीम के अंदर मज़कूर हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से मुकालमा किया, अपनी कौम से मुकालमा किया। इसी तरह जो है उनके वक्त में जो बादशाह था नमरूद, उससे भी उन्होंने मुकालमा किया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो अपने वालिद से मुकालमा है उसको भी कुरान ने जिक्र किया, उनके दीगर मुकालमात को भी जिक्र किया। दावत इल्लाह के सिलसिले में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नुमाया मकाम हासिल है। कुरान मजीद ने 25 सूरतों में उनका जिक्र किया है, यानी कि हज़रत जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो दावत है उसको एक नुमाया हैसियत से कुरान मजीद ने जो है वो जिक्र किया है। अपने वालिद से उन्होंने जो है वो जब मुकालमा किया तो उस मुकालमे में उन्होंने जो है वो क्या कहा, क्योंकि उन्होंने अपने कार दावत का आगाज़ अपने घर से किया तो इस वजह से उनको जो है वो खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अपने घर से ही दावत का आगाज़ किया, लेकिन मुश्किलात के बावजूद उसे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी खूबी के साथ निभाया। अपने वालिद से उन्होंने जो है वो मुकालमा करते हुए उनसे कहा, इज़ क़ाल लिअबीही या अबति लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैआ। ये सूरह मरियम की आयत है, आयत नंबर 42 से लेकर आयत नंबर 44 तक उनके अपने वालिद से मुकालमे का जिक्र है कि जब उन्होंने अपने वालिद से कहा, इज़ क़ाल लिअबीही, ए मेरे बाप, बेशक या अबति लिमा तअबुदु, या अबति, ए मेरे बाप, लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैआ। जब उन्होंने अपने वालिद से कहा कि आप क्यों इबादत करते हैं उनकी जो न सुनते हैं, वला युबसिरु, और न देखते हैं, वला युग़नी अन्का शैआ, और न ही आपको जो है वो किसी किस्म का कोई फायदा पहुंचा सकते हैं, यानी ऐसी चीज की इबादत आप क्यों करते हैं। इसको कुरान करीम ने जो है वो उनके जो मुजादला है अपने वालिद के साथ जो मुकालमा है उसको जिक्र किया है। पूरा मुकालमा कुरान करीम ने नकल किया है। इसमें दावत का इस्तेदलाल भी है और दावत का उसलूब भी है। इसको दाई का निसाब कहा जाए तो गलत ना होगा, यानी कि जो उनका जो है वो अपने वालिद से मुकालमा है जिसको कुरान करीम ने तफसील से जिक्र किया है कि जब उनसे उनके वालिद से उन्होंने जो है वो कहा कि आप ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं, तो क़ाल अराग़िबुन अन्ता अन आलिहती या इब्राहीम, उन्होंने कहा कि अगर जो है वो बाप ने कहा क्या रूगर्दानी वाला है तू मेरे खुदाओं से, ए इब्राहीम। तो इस तरह से जब उन्होंने ये कहा तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल सलामुन अलैका सअस्तग़फिरु लका रब्बी इन्नहु काना रब्बी हफ़िय्या, कि मैं आपके लिए जो है वो अपने रब से इस्तिग़फ़ार करूंगा, मग़फ़िरत तलब करूंगा। इस तरह जो है वो एक पूरा मुकालमा कुरान करीम ने उनका जिक्र किया है जो उनके वालिद से उन्होंने किया था। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो अपनी कौम से मुकालमा है उसको भी कुरान करीम ने तफसील से जिक्र किया है। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासीलु लती अंतुम लहा आकिफ़ून। सूरह अंबिया की आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो है वो जिक्र किया है। याद करो जब आपने कहा अपने बाप और अपनी कौम से कि ये क्या मूर्तियां हैं, मा हाज़िही तमासीलु लती, ये क्या मूर्तियां हैं जिनकी तुम पूजा पाठ करते हो, अंतुम लहा आकिफून, तुम जमे बैठे हो, जिनकी पूजा पाठ पर तुम जमे बैठे हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस पूरे मुकालमे में जो दावत का अंदाज इख्तियार किया है वो इस्तिदराज का है और दावत बिल मुजादला का जो है वो रंग उनकी दावत पर गालिब है। यानी कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मुकालमा किया तो उसमें जो दावत बिल मुजादला है उसका रंग गालिब है और मुनफरिद रंग उनका नजर आता है। तर्ज इस्तदलाल भी उमूमन इसी नौयत का उनका होता है कि जो हकीकत आप मुखातब पर वाज़े करना चाहते हैं वो खुद उसकी जुबान से कहलवाएं, इसको जो है वो
दावत बिल मुजादला कहते हैं या इस्तदराज कहते हैं। इस्तदराज का भी यही मतलब होता है कि जो हकीकत आप मुखातब पर वाज़े करना चाहते हैं आप वही उसकी ज़बान से कहलवाएं। तो इसका रंग उनकी दावत पर गालिब है इस पूरे मुकालमे के अंदर। इस्तदराज का मतलब यह है कि वो मुखालिफ पर उस रास्ते से दर्जा बदर्जा घेरे डालते जिधर से उसको गुमान भी ना होता कि वो घेरे में आ सकता है। यानी ये इस्तदराज का एक दूसरा मतलब है कि मुखालिफ पर उस रास्ते से दर्जा बदर्जा घेरा डालते जिससे उसको गुमान भी ना होता कि वो घेरे में आ सकता है, इस तरह से वो घेरे में आ जाता है, यानी दलाइल की दुनिया में। तो ये उनका तरीके इस्तदलाल था या तरीके दावत था। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो अपनी कौम के जो उनके बादशाह थे नमरूद, उससे जो मुकालमा हुआ, जो बादशाह वक्त था उससे जो मुकालमा हुआ, उसको भी कुरान करीम ने जो है वो तफसील से जिक्र किया है। नमरूद असल में खुदाई का दावेदार था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत से उसे अपनी बादशाहत खतरे में महसूस हुई, तो उसने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुजादला किया, जिसे कुरान ने तफसील से जिक्र किया है। यानी कि जब उसको ये लगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी बादशाहत के लिए खतरा बन सकते हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने बुलाया और उनका जो मुजादला हुआ, जो मुकालमा हुआ, उसको कुरान ने तफसील से जिक्र किया है। इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत। ये सूरह बकरा की आयत है। इन आयत के अंदर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जिक्र किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कहा मेरा रब वो है जो जिलाता है और मारता है, जो जिंदा करता है और मौत देता है, तो उसने कहा काला अना उह्यी व उमीत, तो उसने कहा कि मैं भी जिला सकता हूँ, जिंदा कर सकता हूँ और मार सकता हूँ। और फिर उसने जो है वो एक बेगुनाह शख्स को बुला के कत्ल कराया और एक सजाए मौत के मुजरिम को आज़ाद कर दिया दलील के तौर पर। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब ये सूरत हाल आई तो हकीकत समझाने और मामले की जो बारीकियां हैं जो है वो उनके अंदर जाने की बजाय उन्होंने मुजादला अहसन से काम लिया और उससे कहा काला इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला तो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब से जो है वो गुरूब करता है, तो तू भी इस तरह करके दिखा। तो फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, ये सुनकर उसके होश उड़ गए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज ही ऐसा होता कि दलाइल कातिया के ज़रिए से वो मुखालिफ का मुंह बंद करवा देते। जब उसने जो है वो जिंदा करने और मारने का मतलब ये समझा कि एक बेगुनाह को कत्ल करा दिया और एक मुजरिम को आज़ाद कर दिया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दलील जो है वो दी कि सूरज को मशरिक से तुलू करके दिखाओ और मगरिब से गुरूब करके दिखाओ। मेरा रब तो वो है जो सूरज को तुलू और गुरूब करता है। ये दलील क़तई थी और इसकी वजह से उसका मुंह बंद हो गया। दलाइल में इस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जकड़ लेते सिवाय कट हुज्जती के और कोई रास्ता बाकी न रहता। अब जिस तरह उन्होंने ये दलील दी तो इसमें कोई रास्ता उसके पास बाकी नहीं रहा। तो अल्लाह ताला ने इस तरह से तमाम मनाजरों में उनको कामयाबी अता फरमाई। जो भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुनाजरे किए अपनी कौम के साथ या नमरूद के साथ या अपने वालिद के साथ, इस तरह तमाम मुनाजरों में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कामयाबी से हमकिनार फरमाया। लिहाजा आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी अक़वाम से जो मुकालमे हैं उनकी तफसील हमने आज के सबक में पढ़ी है। हमारे अगले सबक का उन्वान होगा दावत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुकालमाती उसलूब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।